Hello everyone, I, Nilima Salvi, working as Assistant Professor, Department of Pharmaceutics, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we are going to start with the interfacial tension. In previous video we discussed about the introduction of interfacial tension and surface tension. After that we had started about the surface tension. We had discussed in previous video surface tension and its units and how the molecule work onto the surface and into the bulk of liquid. So that was surface tension. Today we are going to start with the interfacial tension. So start with the interfacial tension. Interfacial tension is defined as the force per unit length which exists at the interface in between the two immiscible liquid. First of all, as previously we discussed, जैसे हमने पहले पढ़ा था what is interface and surface, है ना। तो interface वो होता है जहाँ दो immiscible liquid मिलते हैं और आपको एक बाउंड्री दिखाई पड़ती है, that is interface। तो सरफेस वो होती है जहाँ पे दो फेज मिलते हैं जिसमें से एक फेज गैस होती ही है और दूसरा लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। तो उस केस में इंटरफेस नहीं बनता है, उस केस में सरफेस बनती है। ठीक है, अगर गैस इन्वॉल्व है तो सरफेस बनेगी, अगर दो कोई भी फेज है अदर देन गैस देन देयर वुड बी इंटरफेस। सो एट द सरफेस और इंटरफेस बिकॉज ऑफ द टू काइंड ऑफ फेज आर there, so that's why the tension which is creating onto the interface or at the surface is known as surface tension and interfacial tension. So in interfacial tension the force per unit length which exists at the interface पर जो force exist कर रहा है in between two immiscible liquid, जब लिक्विड दो immiscible होंगे तब उनके फेज में इंटरफेस आपको क्लियर दिखेगा। If the two liquids are miscible with each other, अगर दो लिक्विड एक दूसरे साथ मिक्स हो जाते हैं तो उस केस में हमें कोई इंटरफेस नहीं मिलेगा, बट बोथ लिक्विड आर मिक्सिबल तो हमको एक सिंगल कंटेंट या सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा और मिक्सचर हमको मिलेगा। उस केस में कोई भी इंटरफेस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक वाटर एंड डाई इथाइल ईथर, वाटर इज पोलर वन and diethyl ether is non-polar. So when we will take this two solution in a beaker, we will get a distinct boundary in between the two phases or in between two liquids that is immiscible with each other. तो इस केस में हमको मिलेगा interface in between the two immiscible liquids. So this was the definition of interfacial tension. After that, the unit, how we can measure interfacial tension. So unit is same as surface tension, that is dyne per centimeter in CGS and Newton per meter in NKS system. So this was the units for interfacial tension. After that, if there are two miscible liquid, अगर कोई दो miscible या mixed जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, दो immiscible liquid अगर होते हैं तो उस केस में हमें कोई इंटरफेस नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वाटर और इथेनॉल, एग्जाम्पल है वाटर और इथेनॉल, बोथ आर पोलर इन नेचर। तो जब वाटर में इथेनॉल मिक्स करेंगे तो दोनों जो लिक्विड हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे या मिक्सिबल होंगे। उस केस में हमें कोई इंटरफेस या बाउंड्री दो लिक्विड के बीच में नहीं मिलेगी। Second example is benzene and water. So these two liquids are immiscible with each other. So that's why we will get a interface in this system. So because of these two immiscible liquids, we will have interface, and because of that we will again have interfacial tension at the interface. So after that interfacial tension is less than surface tension. Why so? interfacial tension कम होता है as compared to surface tension के। तो ऐसा क्यों होता है? It is because of the adhesive forces between two liquid. दो लिक्विड के बीच में adhesive forces present है
टुगेदर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था सरफेस टेंशन के टाइम पे कि लिक्विड और गैसियस फेज जब होते हैं, वो डायग्राम आप लोग याद करो जो हमने पढ़ा था। ये बीकर है, ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पर प्रेजेंट है, और ये बल्क में मॉलिक्यूल जिसके ऊपर इक्वली सब तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, ऊपर हो गया गैसियस फेज, ये हो गया लिक्विड, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल के पास दो डिफरेंट फेज है, एक ऊपर आपका गैसियस फेज हो गया, नीचे बल्क में लिक्विड हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो है कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द एडहेसिव फोर्स। सो हम वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि इंटरफेशियल टेंशन जो होता है वो लेस होता है सरफेस टेंशन के कंपैरिजन में, बिकॉज एडहेसिव फोर्स बिटवीन टू लिक्विड। अगर हम बात कर रहे हैं इंटरफेशियल टेंशन की, तो अगर ये वाटर है और सेकेंड लिक्विड है बेंजीन, ठीक है, तो इंटरफेस बनेगा यहाँ पर, ये बन गया इंटरफेस, ठीक है। तो अब इस इंटरफेस पर जो टेंशन होगा और इस मॉलिक्यूल जो सरफेस पर प्रेजेंट है, तो इस सरफेस पर जो टेंशन क्रिएट होगा, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि सरफेस टेंशन जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इंटरफेशियल टेंशन, क्योंकि इंटरफेस है मतलब दो लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस केस में जो आपका फेज है वो सेम है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कोहेसिव फोर्सेस जो होते हैं, ठीक है, इट इज इन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स एंड और इंटर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन जो होता है दैट इज इन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल। सो कोहेसिव फोर्स जो है वो आपको मिलेगा, और एडहेसिव फोर्स कब मिलता है जब दो अनलाइक मॉलिक्यूल जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो अनलाइक में आपको मिलेगा एडहेसिव फोर्स। So interfacial tension is less than surface tension. It is because of the adhesive force in between the two liquids at interface are greater than when liquid and gas phase exist together. Interfacial tension indicate the strength of the adhesive force between immiscible liquid, whereas surface tension indicate cohesive forces in liquid. It means surface tension जो है वो cohesive फोर्सेस को इंडिकेट करता है लिक्विड में, और आपका इंटरफेशियल टेंशन जो है वो इट इज बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्सेस इन बिटवीन द इमिसिबल लिक्विड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंटरफेशियल टेंशन। नाउ एग्जांपल इज दैट इफ वी विल यूज बेंजीन एंड वाटर। सो बेंजीन जो होता है सेमी पोलर होता है और वाटर जो होता है वो हाईली पोलर होता है। तो सेमी पोलर और पोलर को अगर मिक्स करते हो तो इन दोनों लिक्विड के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, दिस इंटरेक्शन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द अनदर लिक्विड। एक फेज ये हुआ, सेकंड फेज ये हुआ, तो एक हो गया मिक्सचर आपका वाटर और डाइइथाइल ईथर का। तो वाटर अगेन आपका पोलर है और डाइइथाइल ईथर नॉन पोलर है। तो एक मिक्सचर ये बन गया और सेकंड मिक्सचर ये बन गया। तो इन दोनों में जो भी इंटरेक्शन हुआ मॉलिक्यूल्स का वो ज्यादा होगा या स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज इन दिस टू फेजेस आर टोटली डिफरेंट विद ईच अदर। एक आपका पोलर है, सेकंड नॉन पोलर है, और इसमें पोलर है, सेकंड सेमी पोलर है। तो सेमी पोलर जो है वो कुछ हद तक तो पोलर में जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इंटरेक्शन इज मच मोर stronger, or bonding is much more stronger in this case as compared to this case. So this was the example of your interfacial tension. After that we are going to start with the factors which affect surface and interfacial tension. So there are two type of factors which mainly affect the surface tension and interfacial tension. That is first internal factor and second is external factor. ठीक है। So these are the two factors which affect surface tension and interfacial tension. So first of all, that surface tension and interfacial tension, it is the physiochemical or characteristic property for the liquid, which is due to intermolecular forces. Intermolecular forces, एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब होता है मॉलिक्यूल के ही अंदर जो भी फोर्सेस हो रहे हैं, सिंगल एक मॉलिक्यूल के अंदर,
दैट इज इंट्रा। इंटरमोलिक्यूलर इट मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्सेस या अट्रैक्शन हो रहा है दैट इज इंटरमोलिक्यूलर। सो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के कारण जो है वो लिक्विड में प्रॉपर्टी जनरेट होती है दैट इज सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन। सो दिस इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। देन they differ greatly in magnitude for different liquid. Surface tension and interfacial tension, which is a property for liquids, and it is differ greatly or it differs highly in magnitude for different liquid. Different liquids के लिए surface tension and interfacial tension different होगा. After that, we are going to start with the internal factor. First of all, in internal factor, the surface tension in liquid is due to intermolecular forces. किसी भी लिक्विड में अगर सरफेस टेंशन हो रहा है सो सरफेस टेंशन इज बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उसके कारण सरफेस पर जो टेंशन क्रिएट होता है दैट इज सरफेस टेंशन। So vice versa we can say कि surface tension is due to intermolecular forces. So surface tension in liquid due to intermolecular forces and magnitude of surface tension, and after that magnitude और intensity, किस intensity का आपका intermolecular force उसमें develop हो रहा है ना। After that we can measure strength of intermolecular forces. For the purpose of comparison surface tension value given. So we are comparing the different surface tension of liquids. वाटर का surface tension जो है 72.8 न्यूटन पर मीटर होता है, बेंजीन का 28.9 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है 26.7. So these are the surface tension values for different liquids. So in this case the water which have 72.8 Newton per meter surface tension, it is because of the hydrogen bonding. Second, benzene which have 28.9 surface tension, which is because of inductive forces. And lastly, carbon tetrachloride which have 26.7, which is because of London type of forces. So these are the different intermolecular forces which could be arise into the system. So first of all, try to understand the hydrogen bonding. So if we will say that hydrogen bonding, so hydrogen bonding में क्या होता है? Suppose we have a water molecule. This is a water molecule. So in this water molecule, what happens? It have some charges onto the molecules. जो भी आपके हाइड्रोजन है उस पर डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा और जो आपका ऑक्सीजन रहेगा उस पर डेल्टा नेगेटिव रहेगा। तो हर जगह यही होगा। तो आपके ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो इन ऑक्सीजन और इन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड है ना, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड वाटर मॉलिक्यूल। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है, सो दिस बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज वीक इन नेचर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वीक होती है। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करते हैं हाइड्रोजन एटम में विथ जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जो हाईली नेगेटिव होता है तो उससे हाइड्रोजन एटम जो है वो कोवेलेंटली बाइंड होता है और उसके बाद वो फर्दर जो है वो बाइंडिंग क्रिएट करता जाता है। तो दिस वाज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। if we talk about the second inductive forces, तो inductive forces क्या होते हैं कि
an effect regarding transmission of unequal sharing of the bonding electron through a chain of atoms in a molecule, which lead to a permanent dipole in a bond. So we can say that inductive effect मतलब किसी एक के कारण दूसरे में इंडक्शन क्रिएट होना और बॉन्डिंग बनना, ठीक है. इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस and these are electrons. In this again this is nucleus and there are electrons. So because of this there would be dipole create. इसमें dipole create होगा तो यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस और यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट होगा. डायपोल जब क्रिएट हो जाएगा तो बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल जो भी फर्दर मॉलिक्यूल्स है उनमें इंडक्शन होकर डायपोल क्रिएट होता जाएगा, ठीक है. सो दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट और इसके कारण ये जो आपके फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं इनटू द न्यूक्लियस एंड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट एंड लंडन टाइप ऑफ इफेक्ट, ठीक है. सो दिस वाज अ लंडन टाइप ऑफ इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट. तो डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जिसके कारण मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में अरेंज होते हैं. सो दिस वाज इंटरनल फैक्टर व्हिच अफेक्ट सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन. आफ्टर दैट सेकंड इज एक्सटर्नल फैक्टर. सो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होता है कि हम किसी भी लिक्विड में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर ऐड करते हैं, है ना, तो क्या होता है जो लिक्विड है उसमें चेंज आता है उसके सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन में. सपोज व्हेन सब्सटेंसेस आर एडेड इन लिक्विड they alter surface tension and interfacial tension. For example, अगर वाटर में आपने सॉल्ट ऐड किया तब सरफेस टेंशन चेंज होगा. अगर वाटर में आपने सैंड ऐड की है तो सैंड के कारण भी उसका सरफेस टेंशन चेंज होगा. तो सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन लिक्विड में कुछ भी सब्सटेंस ऐड करने से क्रिएट होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हैं लिक्विड में तब स्लाइट इंक्रीज होगा आपका सरफेस टेंशन या कुछ हद तक इंक्रीज होगा सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन. एंड इफ वी आर एडिंग सरफेस एक्टिव एजेंट्स फॉर एग्जांपल क्लीन एंड स्पान, तो सरफेस एक्टिव एजेंट के कारण जो है वो इंटरफेशियल टेंशन कम होगा. सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर व्हिच मे इंक्रीज और डिक्रीज द सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है. फर्स्ट पहली चीज ये क्लियर कर लो कि लिक्विड में आप कोई भी सब्सटेंस अगर ऐड करते हो तो उसके सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन में चेंज आएगा. अब चेंज मतलब चेंज जो है वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है. सो दिस वाज द चेंज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर. नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट दिस सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन. Suppose temperature of system should be maintained constant during the finding of or determination of surface tension and interfacial tension. The temperature should be constant of the system during measurement of surface tension and interfacial tension. If or as the temperature increases, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होगा. अब सरफेस टेंशन लिक्विड का कम क्यों होगा टेम्परेचर बढ़ने से. फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर हम किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं, हमारे पास बीकर में ये लिक्विड है और इसमें हमने मॉलिक्यूल्स या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ऐड किया है, हमने इसको हीट अप किया. हीट करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में मोशन इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी में अगर बढ़ेगी मोशन ज्यादा होगा तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो कोहेसिव फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल में इन सरफेस की और बल्कि जो मॉलिक्यूल में कोहेशन कम हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगा. और हम यही बोलते हैं कि कोहेसिव फोर्सेस के कारण सरफेस टेंशन जो है वो अराइज होता है लिक्विड में. तो जब कोहेसिव फोर्स ही डिक्रीज हो जाएगा तो सरफेस टेंशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. सो दिस वाज कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से कोहेसिव फोर्सेस जो है वो वीक हो जाएंगे. सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर.
एट द क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन जो है वो जीरो होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन जीरो होता है। वाई सो? बिकॉज हम बोलते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, वो उबल कर या बॉइल होकर वेपर फॉर्म में रिलीज आउट होता है एनवायरमेंट में। दैट्स व्हाई लिक्विड डजंट एग्जिस्ट एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट बिकम वेपर और गैसियस फेज। दैट्स व्हाई वी कैन से कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन जीरो होता है। So this was all about surface tension and interfacial tension and the factors which affect this two. In next video we will start with the determination of surface tension and interfacial tension. Thank you.